Today is the opportunity to build the tomorrow you want. A very warm welcome to one and all present over here. I, Kunal, And I, Surbhi. welcome you all to today's webinar on fundamentals of GST. Firstly, I would like to welcome our Honorable Principal, Dr. R.K. Gupta Sir, Convener of Commerce Association, Dr. Jay Sankar Sir, who is the lighthouse of our society. And I would also like to welcome Professor Asha Rani Ma'am, who is the pillar of our association, and everyone present here. Today, we have gathered here for the webinar on Fundamental of GST, organized by Commerce Association, Department of Commerce in collaboration with IQAC, BA Program Committee Vidya Vistar, and Taxo Academy. So before starting of the webinar, I would like to shed some light on our Commerce Association. Since its inception, the Commerce Association has been an integral part of PGDAV Evening College. It has been actively organizing various webinars, workshops, quizzes, and various other events throughout the year, which are related in different aspects of commerce and skill development. As we So I would like to call our respected speaker of today's webinar, CA Atul Gupta, former president of ICI for the tenure 2020 to 21 and a central member of ICI since 2013. He has also served as the chairman of Northern Indian Regional Council of Cost Accountants of India for the tenure 2005 to 6. He has also published numerous articles in leading newspapers, magazines, professional newsletters, and derived lectures in about 1600 seminars and conferences. One of his articles on GST concepts and roadmap was forwarded by late Shri Arun Jaitley ji, former finance minister, Government of India. He has also conducted many mentorship programs at the time of pandemic and also trained more than 5,000 officials of CBIC and supported in drafting various provisions of GSTN. Now I request Atul Gupta sir to continue. Thank you, Kunal, and all the respected colleagues and the professors from the PGDAV College, and all my other colleagues, participants, and the dear students. At the outset, I'm thankful to the Taxo Academy and the PGDAV College for giving me this opportunity to come and share some of my thoughts. Yes, the time is very limited, so I will not go into all these inaugural addresses. Let us start straightway to the topic which is assigned to me. Friends, as far as the GST is concerned, when we are talking about the GST, the basic fundamentals of GST, first of all, we need to learn, as you will agree with me, that there are a lot of opportunities available in the GST. The GST was introduced on the 1st of July 2017, and you will all will agree with me that today there are more than 1.4 crore assessees are there, meaning thereby the more than 14 million assessees are there who are registered with the GST department. Now, when the GST department, they are registered, they have to file the monthly returns or the quarterly returns, and then they have to maintain a lot of records and the registers and the books of accounts, meaning thereby to support the 1.4 crore assessees, there is a huge infrastructure, not only in terms of the technology, but also in the skilled manpower is the need of the hour. And that's why the Taxo Academy and the PGDAV College, the Ramanujan College, and everybody is looking to create a line of professionals, line of skilled force who will be able to contribute in the success of all these 1.4 crore assessee vis-a-vis the country. And in the meantime, they will be getting the very good career, because if you are good, having the good knowledge of the GST, certainly you can have a flourishing career in terms of that you may be providing the various services in the area of GST. Now, my dear friend, with this background, let us start the basic concept of GST. What is GST all about? As I mentioned you, the GST was introduced on the 1st of July 2017. So that should be, everybody should be aware of that, okay, what is. And the GST, when I'm talking about the GST, it's meaning thereby the goods
and services tax, meaning thereby a tax which is applicable on the supply of goods and services. So if I supply the goods and services, what I have to do, I have to charge the GST and pay to the government exchequer. So say for example, I am selling the goods of rupees 100, okay, and the rate of tax is 18%. Then what I will do, I will charge 100 rupees plus 18 rupees because it's an indirect tax. I will charge from the customer 118 rupees, and this 18 rupees I will collect. So if A is selling the goods to B, what will happen? That the A will collect this 18 rupees from Mr. B and will pay to the government exchequer. So what I will do, I will pay the government through the challan that, okay, this 18 rupees I have collected on behalf of the government. So my dear friend, when we have this very, very basic understanding, I will say it will be 0.01% of the GST only, which I mentioned you. When this is the basic understanding of the GST, the next question before all of us will come that how the GST works. What is GST all about? What are the various aspects of the GST? Let us learn those aspects so that we are having the good understanding of what is GST all about. So my dear friend, if I will go to the helicopter view, so what I will show you the helicopter view or the 360-degree view of the GST. What is GST all about? So that whenever you are discussing about the GST, say Kunal is discussing with somebody. Kunal is sitting with his parents or his friend or somebody, and they are discussing about the GST. Now the Kunal will say, GST, I am aware that, okay, it is the tax on the sale value, 18%, 12%. But apart from that, I don't know anything about the GST. So what I'm trying to give you, the Kunal and your friends, that let us have a 360-degree understanding of the GST on a very, very basic level. I will not make your life very difficult. We'll try to make the life very simple so that in a very simple words, we can understand what is GST all about. Now, first aspect which your friend will be asking you that, okay, whether the GST will be applicable on everything. All the activity you are doing, GST will be applicable. So the simple word will be कि GST किस पे लगेगा और GST किस पे नहीं लगेगा. So the first question will be in your mind that, okay, GST किस पे लगेगा और किस पे नहीं लगेगा. So my dear friend, when we are saying the GST किस पे लगेगा और किस पे नहीं लगेगा, on which activity the GST will be applicable, which activity will attract the GST, first of all, we need to go to the understanding. Now, my dear friend, as I mentioned you that the 100 rupees you are selling for 100 rupees, the 18% will be taxed. It is a tax on the goods and services. So, my dear friend, what it means? It means that when we are discussing किस activity पे GST लगेगा और किस पे नहीं लगेगा, when we are discussing this, we need to develop an understanding that the GST will be applicable on the activity only when these four conditions are fulfilled. Number one, that there should be a sale. There should be a sale. Sale may be in a cash, sale may be in a kind, in a barter system, something like that. Number two, of goods or service. So either that should be a goods or service. So आपके मन में क्वेश्चन आएगा, फिर इसके अलावा क्या होता है? अगर गुड्स और सर्विस नहीं होती है तो कुछ और भी होता है क्या? The answer is, for example, the immovable property. So in case you are selling a property, a house property for which the completion certificate has been received. So on the sale of this house property, the GST is not applicable. If you are dealing in money, for example, you are converting the Indian rupees into the dollar. In that case, the money is not falling under the definition of goods. It will not be taxable. Actionable claims, for example, कि किसी को इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो इंश्योरेंस क्लेम जब मिलता है तो ना वो गुड्स में आता है ना वो सर्विस में आता है. एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, ओके, सो अगर मैं किसी का एम्प्लॉय हूं तो मुझे जो सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, ना वो सर्विस में आता है ना वो गुड्स में आता है. तो ऐसे करके आई हैव टू, the GST will be applicable only when you are selling a goods or service. Number three, there should be a consideration. There should be a consideration, meaning thereby if I am selling something free of cost, okay, if I am donating, say for example, outside the temple I am donating the bread or the biscuits,
So whether that will be subject to GST, the answer is no. Why? Answer is no, because there is no consideration. So consideration may be in kind, maybe in a cash. When it is in cash, we are saying, oh, I received the money. But when it is in kind, we will say it is a barter transaction. Okay, so that will be the case. And fourth one, that should be during my business. So it should be my business. It should not be a one of the transaction. It should be my business that, okay, I'm doing this sale of the goods or for a consideration during my business activity. So in this particular case, when all these four conditions are fulfilled, then the activity will attract the GST. Now, my dear friend, coming to the next one, ये तो तय हो गया कि GST लगेगा, that the GST किस activity पे लगेगा. Now the question will be कि rate कौन सा लगेगा. So there will be the various rate. There is a rate of 0%, 5%, 12%, 18%, 28%. कौन सा rate applicable होगा मेरी activity पे, ये अपने सामने question आएगा. This will be a question before all of us. And for that, I just wish to share with you that if you are selling the goods, so in the government, in this system of indirect tax, earlier it was there in excise duty, now it is applicable in GST also, that if you are selling the goods, then the classification, the how you will classify, कि इसके ऊपर जो है वो टैक्स रेट जो है वो 5 लगेगा, 12 लगेगा या 18 लगेगा या 28 लगेगा. For this classification, they have given us the HSN code, meaning thereby that every product, harmonized system of nomenclature, हर एक प्रोडक्ट के लिए एक क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल है. सो क्या है, मेरा नाम क्या है अतुल गुप्ता, आपका नाम क्या है कुणाल. लेकिन अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि मैं ये मोबाइल अगर मान लीजिए सेल करने की बात करता हूं, तो मोबाइल का नाम मोबाइल नहीं है. मोबाइल का नाम जो है वो हो सकता है कि मोबाइल का नाम हो 04031140. So every product has been given assigned a code, a classification code, a alphanumeric, alpha not alpha is a numeric identity. So it's an identity card of every product. That is called the HSN classification. But in case it is a service, so this is for goods. But if it is a service, then there is a service accounting code. So then there is a service accounting code. So based on this code, I will be able to identify what is my goods or what is my service and which rate will be applicable. So this is the way that we need to understand, we need to learn that how I will be, because there will be the 11,000 rates. So Kunal 11,000 honge, Atul Gupta 11,000 hai. How you will be able to identify which Atul? Okay, so what is happening for all the goods and service, there is a 11,000 different index is there. So out of the 11,000, you have to select. If you are selling this pen, you have to select that which will be the rate of the GST, what will be the rate of GST on this selling of this pen. Now the pen will have a different code, the mobile will have a different code, the laptop will be having a different code, specs will be having a different code. You are going for a restaurant, the restaurant will have a different code. You are buying for a Pepsi or a cola, then there will be a different code for Pepsi and cola. So all the product and services have their different code, and based on that you understand the classification. So this is the second aspect which we need to learn. So first one was whether the activity is taxable or not, and the second one is that what will be the classification. Then we come to the next stage, that is the valuation. कितनी वैल्यू पे टैक्स लगेगा. आप बोलेंगे अरे ये भी कोई बात है कि कितनी वैल्यू पे टैक्स लगेगा. If I am selling for 100 rupees, the tax will be on the 100 rupees. What is the problem? Why you are asking me this? No, my dear friend, there is a lot of I will say the situations when the आप 100 rupees से ज्यादा चार्ज करते हैं या 100 rupees से आप कम चार्ज करते हैं. से फॉर एग्जांपल की बात है कि आपने ऑडिट पे गए, आपकी फीस है, सपोज कीजिए कि 1 लाख रुपए फीस है, और आपने 4,000 रुपया जो है वो आपने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस चार्ज किया फॉर कार ट्रेवलिंग. आपने फॉर द ट्रेवलिंग यू आर चार्जिंग 4,000 rupees. Whether the GST will be applicable on 1 lakh or 1,04,000. Say for example, you are giving some discount to somebody for 10,000 rupees. So practically you receive 90,000 only. So whether you will charge the GST on 1 lakh or on the 90,000. At times you are selling the old printer. Say example, you are giving the old printer to purchase the new printer. It's a barter transaction. So old printer, new printer is 10,000 rupees. But if you are giving the old printer, I will charge only 5,000 rupees. So whether the GST will be applicable on this 5,000 or the 10,000, because I am replacing the old printer.
So in all those situations and the many other situations, we need to learn the which value will be subject to GST. और उसके लिए हमारे को जीएसटी में वैल्यूएशन के प्रोविजन दिए गए हैं। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, हम वैल्यूएशन के प्रोविजन सीखेंगे कि वैल्यूएशन जो है वो 1 मिनट के लिए कैसे कैलकुलेट की जाती है डिफरेंट सिचुएशंस में। इन द डिफरेंट सिचुएशन हाउ यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दी वैल्यूएशन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि विच जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। अरे ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। विच जीएसटी, जीएसटी तो एक ही है, आप कैसी बात कर रहे हो कि कौन सा जीएसटी लगेगा। सो देयर विल बी अ डाउट इन द माइंड ऑफ एवरीबॉडी कि भाई जीएसटी कौन सा लगेगा, आप कैसी बात कह रहे हो जी। ठीक है, तो अपने पास जो है वो 1 मिनट के लिए ये क्वेश्चन आया कि जीएसटी अपने को कौन सा जीएसटी लगेगा। नाउ माय डियर फ्रेंड, आई जस्ट विश टू क्लैरिफाई यू कि इट्स नॉट कि देयर आर 2 जीएसटी। नहीं, ऐसा नहीं है कि देयर आर 2 अलग अलग जीएसटी हैं, लेकिन हम लोगों ने सिस्टम क्या बनाया कि एक हमारे पास अलग अलग तरह की ट्रांजैक्शन है। पहले समझिए कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू। जीएसटी जो है वो हमारा एक अपने आप में डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ये क्या होता है? नाउ द स्टूडेंट्स विल हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज दिस डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? डेस्टिनेशन मीन्स कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स क्या हुआ कि जिस स्टेट में कंजम्पशन होगी, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट जो है वो दिल्ली से सेल हुई और वो हरियाणा में कंज्यूम हुई, तो टैक्स किसको मिलेगा? टैक्स जो है वो हरियाणा को मिलेगा। जिस स्टेट में कंजम्पशन होगी टैक्स उसको स्टेट को मिलेगा। ठीक है साहब। तो इसके लिए क्या हुआ कि अगर मान लीजिए मैंने ट्रांजैक्शन एक दिल्ली से करी और मैंने दिल्ली में ही एक ट्रांजैक्शन, मैंने दिल्ली में ही मेरा बायर है, सेलर है, ओके, और दिल्ली में ही मेरा बायर है। सो व्हाट विल हैपन, द टैक्स विल कम टू फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली ओनली। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मेरा सपोज कीजिए कि दूसरी ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर मेरा जो है वो सेलर जो है वो दिल्ली से है और जो बायर है वो मेरा सपोज कीजिए वो 1 मिनट के लिए मध्य प्रदेश में है। बायर जो है वो मध्य प्रदेश में है। सो हु विल गेट द टैक्स? अल्टीमेटली द मध्य प्रदेश। नाउ व्हाट विल हैपन, द पर्सन हु इज सेलिंग इन दिल्ली हैज टू व्हाट विल डू, वो ये तो करेगा नहीं कि मध्य प्रदेश जाकर रजिस्ट्रेशन लेगा और टैक्स जमा करा के आएगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो वो क्या करेगा, अपना टैक्स दिल्ली में ही जमा कराएगा और somebody has to come in between and transfer the tax from Delhi to मध्य प्रदेश। तो ये जो जिम्मेवारी है कि इसको बीच में आना है और जिम्मेवारी लेनी है, वो हमारी जिम्मेवारी ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये काम करूंगा, लेकिन कैसे करूंगा उसको बताता हूं आप लोगों को। सो व्हाट हैपेंड कि जब भी हमारा कोई जीएसटी लगता है, क्योंकि हम फेडरल स्ट्रक्चर में जीते हैं, तो फेडरल स्ट्रक्चर में जीने की वजह से हमारे जो है वो 2 तरह की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। तो कोई भी जो टैक्स होगा उसके अंदर जो है वो दोनों के दोनों हिस्सेदार हैं। तो जीएसटी में भी दोनों हिस्सेदार हुए। तो अगर सपोज कीजिए 18% रेट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है 9% मेरा है और स्टेट गवर्नमेंट कहती है 9% मेरा है। अब इस केस में दिल्ली टू दिल्ली की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना चाहिए? 9% और स्टेट गवर्नमेंट को भी 9% चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक टैक्स चार्ज करूंगा सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी 9%, और मैं दिल्ली में जमा कराऊंगा, दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट विल गेट दी किटी। बट इन केस ऑफ दिस केस, जब हम दिल्ली से मध्य प्रदेश की बात करते हैं, सो व्हाट आई विल डू, इफ आई विल डिपॉजिट इन दिल्ली, हाउ इट विल गो टू मध्य प्रदेश? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू कम इन पिक्चर। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि जब आप इंटरस्टेट सेल करेंगे फ्रॉम दिल्ली टू मध्य प्रदेश, what I will do, rather than you are paying CGST plus SGST, you pay me IGST. That is the integrated GST of 18%. And what I will do, I will keep the CGST portion with me 9%, and जो SGST portion है वो मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दूंगा 9% इसमें से। सो अगर हम बेसिक लर्निंग की बात करें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करें हम लोग, so what I am trying to convey you that whenever there will be a intrastate supply, meaning thereby from within this same buyer and seller same state में डील करते हैं, तो मेरा टैक्स लगेगा C प्लस S, CGST प्लस SGST। लेकिन अगर यही ट्रांजैक्शन मेरी इंटरस्टेट है
तो मुझे लगता है IGST। रेट सेम है, या 9 + 9 है तो यहाँ 18% है। सो दिस इज द वे। सो मैंने पूछा आपसे कौन सा टैक्स लगेगा, तो आपको जो है वो ये नहीं होना कि 2 GST है। GST के 2 पार्ट है, एक इंटरस्टेट पे एप्लीकेबल होता है, एक इंट्रास्टेट पे। पर्पस किस लिए है, क्यों बनाया है ऐसा, ताकि जो है वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो IGST कलेक्ट कर ले और वो उस डेस्टिनेशन स्टेट को ट्रांसफर कर दे, सो दैट की द डेस्टिनेशन स्टेट शुड गेट द पोर्शन, हिज पोर्शन फ्रॉम द टोटल टैक्स सो कलेक्टेड। सो दिस इज द वे कि हमारा कई बार क्वेश्चन आता होगा ये IGST क्या है, CGST क्या है, SGST क्या है, कंफ्यूजन है, ये अलग अलग टैक्स है क्या, कैसे लगता है, नहीं समझ में आ रहा है। तो इसलिए मैंने आपको जो है वो एक बार के लिए ये आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हमारे को जो है वो अपने आप में ये टैक्स लगता है। जो अगली चीज है जो हमें सीखने की होगी कि मुझे टैक्स पे कब करना है, तो मैं आपको जनरल प्रिंसिपल बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, यू हैव ए सेल फॉर द मंथ ऑफ फेब, बिकॉज वी आर लिविंग इन फेब 2023। तो जितनी भी आपकी सेल फरवरी 2023 की होगी, उसका टैक्स की जो 2 रिटर्न फाइल होती हैं, एक होती है मेरी सेल्स रिटर्न फाइल, उसकी लास्ट डेट जो होती है वो होती है 10th 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो मार्च की। ओके, ये मेरी सेल्स रिटर्न है। और जो टैक्स जमा कराना है जिसको हम बोलते हैं GSTR 1, और जो मेरी जो टैक्स जमा कराने की जो रिटर्न है, टैक्स डिपॉजिट कराने वाली रिटर्न, उसको हम बोलते हैं 3B, GSTR 3B, उसकी लास्ट डेट होती है 20th ऑफ मार्च, हर महीने की। तो अगर मैं मान लीजिए फरवरी की जगह मैं मार्च की बात करूंगा तो ये मैं अप्रैल कर दूंगा। सो दिस इज द ड्यू डेट व्हेन नॉर्मल सिचुएशन इज देयर। बट क्या होगा, कई बार मुझे एडवांस आ जाएगा, सर्विस मैंने अभी दी नहीं, गुड्स मैंने अभी बेची नहीं, बट आई रिसीव द एडवांस। सो वेदर आई हैव टू पे द टैक्स ऑन द GST ऑन द एडवांस और रिसीव, द आंसर इज अगर वो गुड्स है तो एडवांस पे टैक्स जमा नहीं होता है, लेकिन अगर वो सर्विस है तो उसको ऊपर जो है वो आपको टैक्स ऐसे ही जमा कराना पड़ेगा जैसे हम यहां पर अपनी सर्विस पे करा रहे हैं। ओके, कई बार मुझे टैक्स जो है वो 1 मिनट के लिए कूपन मैंने बेच दिए, तो मुझे कई अलग अलग सिचुएशन होती है जहां पर मुझे ये समझना होता है व्हेन आई हैव टू पे द टैक्स, एंड दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ सप्लाई। मेरी सप्लाई की टाइमिंग कम मानी जाएगी, क्योंकि वो अगर मान लीजिए फरवरी मानी गई तो मुझे उसका टैक्स मार्च में जमा कराना पड़ेगा। मैंने एक बिल्डिंग बनाई 7 फ्लोर की, तो क्या जब 7 फ्लोर पूरी बन जाएंगी तब मेरी वो सर्विस मानी जाएगी? उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। तो उसके अंदर मुझे जानना होता है मेरी टाइम ऑफ सप्लाई कब है, क्योंकि अगर मेरी टाइम ऑफ सप्लाई फरवरी आ गई तो मेरी टैक्स की लायबिलिटी भी आ गई। अगर मेरी टाइम ऑफ सप्लाई फरवरी में ना पड़ के, लेट अस से मैंने एक बिल्डिंग बनाई और उसकी जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो दिसंबर 23 आ गई, तो मुझे मार्च में टैक्स नहीं जमा कराना, उस केस में मुझे जनवरी 24 के अंदर जो है वो जमा कराना होगा टैक्स। So that's why it is very important to learn how the time of supply need to be calculated. उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और जो है वो अगली चीज जो है डिस्कस करते हैं। और अगली चीज क्या है इसमें, वो है मेरा ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये क्या होता है अब साहब, अगला क्वेश्चन आपका आएगा। अगला क्वेश्चन मैंने अभी तक मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा, किस एक्टिविटी पे टैक्स लगेगा किस पे नहीं, रेट ऑफ टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ढूंढते हैं। तीसरा मैंने बताया कि अगर मान लीजिए मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, मैं कोई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस चार्ज कर रहा हूं, तो कितनी वैल्यू पे टैक्स लगेगा, कौन से वाला टैक्स लगाना है, IGST लगाना है या CGST लगाना है, और मुझे टैक्स कब पे करना है, ये मैंने सीख लिया। अब जो है वो एक सीखने की बात है कुणाल, सपोज कीजिए मैंने जो है वो एक आइटम खरीदी 100 रुपए की, मेरी ये परचेज है, मेरा परचेज का लेजर है ये। 100 रुपए की आइटम मैंने खरीदी, 18 रुपया मैंने उस पर टैक्स दिया, 18 रुपया देके मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, मैंने उस पर लेबर लगाई, सपोज कीजिए 20 रुपए की मैंने उस पर लेबर लगाई, मैंने उस पर ओवरहेड्स लगाए, सपोज कीजिए मैंने 10 रुपए के ओवरहेड्स लगाए, और मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मेरा 20 रुपए प्रॉफिट मार्जिन है। अब मैं सेल कर रहा हूं, ये तो मेरा हो गया यहां पर, ठीक है साहब। अब मैं सेल कर रहा हूं, सेल मैंने कितनी करनी है, 150 रुपीज की, क्योंकि देखिए मैंने 100 का खरीदा, 20 10 और 20 50, मैंने 150 रुपए की खरीद बेचनी है, और मेरा रेट ऑफ टैक्स भी 18% है, तो मेरे को कितना लगेगा, 27 रुपीज का टैक्स मेरे को गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन क्या मैं 27 पे कर दूंगा, 18 में पहले पे करके आया था, तो अल्टीमेटली 45 रुपीज जमा हो जाएगा। सो सिंस इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स,
Value added tax means tax on the value added. So I have to pay the tax only on the 50 rupees. 150 minus 100. I should be paying the tax on 50 rupees only because the value addition is only 50 rupees. So how I will be able to pay? There is a mechanism of input tax credit. Meaning thereby कि जो आपने टैक्स पे पहले कर दिया वो आपकी इनपुट है, उसका आप क्रेडिट ले लीजिए. सो व्हाट आई विल डू कि मैं जब सेल करूंगा 27 रुपीज की तो मैं गवर्नमेंट को 27 रुपीज कलेक्ट तो करूंगा, लेकिन मैं 18 रुपीज जो मैं आगे पे करके आया था मैं वो माइनस करके अल्टीमेटली गवर्नमेंट को 9 रुपीज पे करूंगा. 18 रुपीज में ऑलरेडी पे कर चुका, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कितने मिल गए? गवर्नमेंट को तो 27 ही मिल गए सेल वैल्यू पे. सो दिस इज कॉल्ड इनपुट क्रेडिट अंडर जीएसटी. मतलब जितना भी मैंने टैक्स पहले पे किया है, वट एवर द टैक्स आई हैव पेड अर्लियर ऑन माई परचेजेस, I will be allowed to set off against my output liability, and that is called the input credit under GST. इसके बहुत सारे रूल हैं, नियम हैं. How I will be able to claim, which ratio I will be able to claim, what will be the methodology, what records I have to maintain, वो कभी लाइफ में आगे चल के सीखेंगे. फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना, रिटर्न करना. So this is all about the helicopter view. तो ये 6 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके अंदर जीएसटी में जो हमें सीखने होते हैं, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन लेना, रिटर्न फाइल करना, वो सब ऐसे चलते रहेंगे. बट दीज आर दी 6 लार्ज फंडामेंटल्स ऑफ द जीएसटी. चलिए नाउ फ्रेंड्स लेट अस लर्न सम मोर थिंग्स. मैंने अभी अभी आपको बोला कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ. उससे पहले क्या होता था? उससे पहले मेरे पास सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों के मिला के 17 से ज्यादा कानून थे, लॉ थे जो इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट थे. अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग करता था तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का था. अगर मैं सर्विसेज देता था तो सर्विस टैक्स लगता था, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी. अगर मैं सेल करता था तो सेल्स टैक्स लगता था, ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी. कस्टम ड्यूटी जब मैं इंपोर्ट करता था तो कस्टम ड्यूटी लगती थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी. फिर एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ओक्ट्रोए, ऐसे करके बहुत सारे टैक्सेस थे जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी. तो अल्टीमेटली मेरा क्या होता था, मैं 17 डिफरेंट लॉ फॉलो करता था, उनकी रिटने फाइल करता था, उनकी इंटरप्रिटेशनल इशू हैंडल करता था. अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल होते थे. तो अल्टीमेटली मैं बिजनेस करने की बजाय मैं टैक्स कंप्लायंस ही करता था. अभी क्या हो गया, जीएसटी आने के बाद ये सब कुछ खत्म हो गया. ये सब कुछ खत्म हो गया और क्या बचा? केवल ये कस्टम ड्यूटी अगर मैं इंपोर्ट करता हूं तो, और प्लस जो है वो हो गया जीएसटी. तो अब जो है वो 1 मिनट के लिए कस्टम ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी और जीएसटी जिसके अंदर दोनों का हिस्सा है, सेंट्रल प्लस स्टेट का. जैसे मैंने बोला अगर मान लिया 18% रेट है तो 9%, 9% बोथ आर दी पार्टी. तो जितने भी ये मेरे टैक्स थे, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सब सब्स्यूम हो गए. तो अभी क्या हो गया, मान लीजिए एग्जांपल है, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स क्या बन गए? सीजीएसटी. और स्टेट टैक्स क्या बन गए? जितने भी स्टेट के टैक्स थे ये बन गए एसजीएसटी. तो अगर आइटम का रेट मान लीजिए 18% है तो ये क्या होगा? 9. ऐसे करके मेरे बन गए. सो अब क्या होगा, अब इस सिचुएशन में मेरा क्या होगा, अगर पहले मैं सपोज कीजिए कि इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता था, मतलब दिल्ली से दिल्ली, तो मुझे क्या लगता था? मुझे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, मुझे जो है वो 1 मिनट के लिए हो सकता है सर्विस टैक्स भी लगता हो, और मुझे जो है ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, फिर मुझे वैट लगता था स्टेट गवर्नमेंट का. तो यहां लिखा हुआ है ना एक्साइज और सर्विस टैक्स, वो क्या बन गया? सीजीएसटी बन गया. और जो मेरे वीएटी लगता था वो मेरा बन गया एसजीएसटी. तो मैं क्या करूंगा, मैं सी प्लस एस चार्ज करूंगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी चार्ज करूंगा. अगर उसका रेट 18% है मान लीजिए क्लासिफिकेशन के हिसाब से, तो 9 + 9. लेकिन अगर मैं यही प्रोडक्ट इंटरस्टेट करता हूं, मतलब दिल्ली से मध्य प्रदेश, तो उस केस में ये इंटरस्टेट है. तो इंटरस्टेट में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स की जगह क्या हो गया, ये वीएटी की जगह क्या हो गया, एक टैक्स बन गया तीनों का, और वो बन गया आईजीएसटी. ठीक है, वो बन गया मेरा आईजीएसटी, और जो कि प्रैक्टिकली सम टोटल होता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का. लेकिन जब मैं इंपोर्ट करता था तो इंपोर्ट करने में क्या पे करता था, मैं पे करता था सपोज कीजिए कस्टम ड्यूटी,
प्लस मैं पे करता था सीवीडी। सीवीडी क्या होती है? एक्साइज ड्यूटी। और एक मैं पे करता था एसएडी, ये होता है वीएटी। ठीक है साहब, ये एक्साइज ड्यूटी का मर्ज हो गई, ये खत्म हो गई, जीएसटी में मर्ज हो गई, ये भी मर्ज हो गया जीएसटी में। तो खाली बची क्या? कस्टम ड्यूटी। तो जैसे मैंने बताया कि पहले कस्टम ड्यूटी के अलावा क्या होता था ये, लेकिन अब सीवीडी खत्म, एसएडी खत्म, उसकी जगह आ गया आईजीएसटी। तो अगर मान लीजिए सपोज कीजिए मैं 1 लाख रुपए का सामान इंपोर्ट करूंगा और उसके ऊपर 10% कस्टम ड्यूटी है और आईजीएसटी जो है वो उसके ऊपर 18% है, तो मैं 1 लाख रुपए के ऊपर 10,000 रुपया जो है वो कस्टम ड्यूटी पे करूंगा और 18,000 रुपया जो है वो मैं आईजीएसटी पे करूंगा। सो दिस विल बी द ड्यूटी। और इस 18,000 रुपए का मुझे सेट ऑफ मिल जाएगा आईटीसी में, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में, अपनी फ्यूचर लायबिलिटी के अगेंस्ट। तो पहले जो होता था वो हमारा होता था कि जॉब वर्क कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कौन सी स्टेट में कर रहे हो, अब खत्म, वन नेशन वन टैक्स। सभी के अंदर ये फार्मूला कॉमन है कि अगर आप जो है वो इंटर स्टेट कर रहे हो तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगाओ, इंटर स्टेट कर रहे हो तो आईजीएसटी लगाओ, और इंपोर्ट कर रहे हो तो कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी लगाओ। दिस इज द वे दैट द टुडेज रेजिम इज देयर। मैं आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बताता हूं, रिमूवल ऑफ द कास्केड। तो जीएसटी आने से क्या हुआ? 3 तरह के कास्केडिंग इफेक्ट होते हैं। कास्केडिंग इफेक्ट नंबर 1, टैक्स ऑन टैक्स। पहले क्या होता था? टैक्स पे टैक्स लगता था। दूसरा कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? मैं डबल टैक्सेशन। एक ही एक्टिविटी पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह रही है टैक्स दो, स्टेट गवर्नमेंट भी कह रही है टैक्स दो, हर एक आदमी उस पर टैक्स मांग रहा है और सेम वैल्यू के ऊपर। अभी तो नो और नो है ना, तो 100 रुपए के ऊपर नो और नो है। पहले क्या होता था? 100 रुपए के ऊपर ही वो मांग रहा है और उसी के ऊपर जो है वो सामने वाला भी कह रहा है। ठीक है। और तीसरा क्या होता था कि आपको जो है वो क्रॉस सेक्टर क्रेडिट नहीं मिलता था। क्रॉस सेक्टर क्रेडिट नॉट अवेलेबल। क्या होता है जरा समझते हैं। पहला समझते हैं टैक्स ऑन टैक्स। क्या होता था पहले और आप क्या हो गया? पहले मान लीजिए सपोज कीजिए मैंने 100 रुपए की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करी एंड माई मार्जिन इज 10 रुपीज। सो व्हाट विल हैपन? माई सेल प्राइस विल बी, द बेसिक सेल प्राइस विल बी 110, cost is 100, profit margin is 10. So when I am charging the excise duty, say 12.5% is the excise duty, I am charging on my sale price of 110. Very good. So my excise duty is 13 rupees 75 paisa. Now my new price is 123 rupees. But when I am charging the VAT, that is the state tax, that was not on the 110. That was on this price. So क्या हुआ? मैंने excise duty के ऊपर भी VAT चार्ज कर दिया प्रोपोर्शनेटली थोड़ा सा। तो मेरे को जो वीएटी भी जो है वो एक्चुअली में मेरे को 13 रुपीज 75 पैसा लगना था, वो अब मुझे 15 रुपीज 47 पैसा लग रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ जी? तो अल्टीमेटली जो है वो 15 रुपीज 47 पैसा मुझे लग रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि मुझे टैक्स पे टैक्स लग गया। तो टोटल प्राइस से जो सेल प्राइस था मेरा, वो अल्टीमेटली कस्टमर को कितना मिला? 139 रुपीज। और इसमें 2 तरह के टैक्स लग गए, 13 रुपीज 75 पैसा एंड 15 रुपीज 47 पैसा। लेकिन अभी क्या हो गया? अगर मैं 100 रुपए की सेल करता हूं, 10 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन है, 110 रुपए सेल प्राइस है, तो मेरे को जो सीजीएसटी लगेगा 9%, वो मेरा बेस प्राइस पे लगेगा, और एसजीएसटी भी जो है वो मेरा बेस प्राइस पे लगेगा। तो द टैक्स पे टैक्स नहीं है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कस्टमर को प्रोडक्ट जो है वो सस्ता मिल जाएगा। दे विल गेट द चीपर प्राइस, more economical. Now you will have a question in Kunal, in general question, प्राइस तो कम हुए नहीं जीएसटी आने के बाद, तो प्राइस तो उतने का उतना ही है। So what happened in few cases, because you are habitual to pay 139 rupees, तो क्या हुआ? और यहां पर नया प्राइस आ रहा है 129. So the certain manufacturer increase their profit margin from ₹10 to ₹20. So उन्होंने क्या किया कि 100 रुपीज की प्रोडक्ट को उनका बेस प्राइस 120 बना दिया और उसके ऊपर जो है वो जीएसटी लगाया, तो अल्टीमेटली सेम प्राइस मिलने लगा। सो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिटरिंग, एंड दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड अ बॉडी कॉल्ड एंटी प्रॉफिटरिंग, एंड दे इंपोज द पेनल्टी ऑन दोज मैन्युफैक्चरर हु आर डूइंग दिस, कि आप यू कांट टेक द बेनिफिट ऑफ द टैक्सेस। इफ आई हैव रिड्यूस्ड द टैक्स बर्डन, यू प्लीज पास ऑन टू द कस्टमर रादर देन यू आर इंक्रीजिंग योर प्रॉफिट। बट पहला कास्केडिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट ग्लोबली कंपिटिटिव नहीं हो पाती थी, क्योंकि मेरे प्राइसिंग ज्यादा थे।
Today I can sell at the national or the domestic international market with a low price as compared to the earlier price. इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें डबल टैक्सेशन की बात है। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं 1000 रुपीज का, उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगता था, से एग्जांपल की बात है 40% के ऊपर। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट यूज्ड टू से, इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, यूज्ड टू से दैट आउट ऑफ दिस 1000 I will assume 40% is my value. Value will be subject to the service tax. तो 400 रुपीज के ऊपर सर्विस टैक्स लगाया 14.5 के हिसाब से 58 रुपीज। और वीएटी वाला क्या कहता था, नहीं भाई साहब मैं तो बोलूंगा मेरी तो 1000 रुपीज टोटल वैल्यू है, मैं नहीं मानता 600 रुपीज बिकॉज इट्स ए गुड्स सेल। देवर सेइंग कि नहीं ये तो वेटर वगैरह का पैसा है, ये इसका है, नहीं ये कहता नहीं ये गुड्स है। सो बोथ वर फाइटिंग ईच अदर। So what was happening? The VAT was charged on the 100,000 rupees. That is 125 rupees. So practically आपने खाना खाया 1000 का, पर आपने टैक्स दिया 1400 रुपीज के ऊपर, क्योंकि both are fighting with each other. The same was there for the works contract. The same was there for the software industry. That there was a lot of confusion. ये सर्विस है या गुड्स है। अभी क्या हो गया कि कोई सर्विस नहीं रही, कोई गुड्स नहीं रही, सब कुछ सप्लाई बन गया और क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल आ गए। वेदर आइदर दैट विल बी अ सर्विस ऑफ द सप्लाई और देयर विल बी अ सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि क्लासिफिकेशन एचएसएन और एसएससी ने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, आइदर इट विल बी अ गुड्स और इट विल बी अ सर्विस। अदरवाइज पहले क्या झगड़ा था कि एक ही फूड आइटम को लोग बोल रहे हैं सर्विस भी है और बोल रहे हैं कि गुड्स भी है। So it was that I was paying the tax on the 1400 rupees rather than 1000 rupees. But if today I will go to a restaurant, the restaurant will attract the 5% GST, 2.5% central government and 2.5% state government. So straight away I will pay 1000 के ऊपर 50 rupees I will pay as a GST. That's it. The third example which I wish to share with you, the non-availability of the cross credit. मतलब गुड्स का क्रेडिट सर्विस टैक्स के लिए, सर्विसेज के लिए नहीं मिलेगा। आपकी आउटपुट सर्विस है, परचेज आप गुड्स कर रहे हो, तो जो गुड्स पे टैक्स दिया उसका क्रेडिट आपको सर्विसेज के लिए नहीं मिलेगा। सो फॉर एग्जांपल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इज देयर, ही इज प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज, तो सर्विस प्रोवाइड करता था तो क्या लगता था, सर्विस टैक्स लगता था। लेकिन जब वो वाटर बॉटल खरीदता था तो वो गुड्स थी, और गुड्स के ऊपर वो क्या पे करता था, वीएटी पे करता था। ठीक है, तो मैंने जैसा आपको बताया कि सर्विसेज पे लगता था सर्विस टैक्स और गुड्स पे लगता था वीएटी, लेकिन इस वीएटी का क्रेडिट जो है वो इस सर्विस टैक्स के लिए अवेलेबल नहीं था। तो मैंने अगर मान लिया सपोज कीजिए 1000 रुपए की सर्विस देनी है आपको, लेकिन मैंने मान लिया 200 रुपए की पानी की बोतल खरीदी और उसके ऊपर मैंने 10% के हिसाब से मैंने 20 रुपया वैट दिया, ठीक है, और मैंने सर्विसेज के ऊपर आपसे 15% के हिसाब से 150 रुपया सर्विस टैक्स चार्ज करना है, पर ये 20 रुपया भी मेरी कॉस्ट बन जाएगा। So what I will do, I will add this 20 rupees into my cost. So ultimately you will not get the goods for 1000, you will get the goods for 1020 rupees और उसके ऊपर मैं फिर 15% टैक्स लगाऊंगा, तो प्रैक्टिकली 153 रुपया टैक्स लगाऊंगा। So practically the price will go to 1173, जो कि होना चाहिए था 1150, कि 1000 के ऊपर मैंने आपको 150 रुपया टैक्स चार्ज किया, ये होना चाहिए था। But actually I am charging you 1173 because of this burden of the tax embedded into the cost. So certain tax were getting embedded into the cost. They were not allowed as a credit set off. But अभी क्या हो गया, वाटर सप्लाई के ऊपर क्या लगता है, जीएसटी लगता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस पे जीएसटी लगता है। So if I will buy 200 rupees bottle, same अगर if the rate is 10% of GST, 220 rupees I will pay GST. He will charge 1000. Say example 12% is the rate. So what will happen? Again 15% is the rate, 150 rupees. He will charge GST, but he will be able to claim the credit of this. So what he will charge? He will charge me 1000 plus 150, 1150 rather than 1173. Because the tax are not getting embedded into the cost. ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ गुड्स इजी हो जाती है, your products become globally competitive,
You have a reduced compliance cost. क्योंकि आपको एक लॉ फॉलो करना है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो द 17 लॉ. आपको एंट्री टैक्स पे नहीं करना है तो आपको टोल पे लंबी लंबी लाइनें नहीं लगी हैं, तो यू सेव द कॉस्ट एंड टाइम, बिकॉज नाउ देयर इज ए फ्री फ्लो. इंटरप्रिटेशन, बिकॉज द 17 लॉ की जगह एक लॉ फॉलो करना है. अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है क्योंकि जीडीपी बढ़ती है और गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिलता है. ये अपने आप में की बातें जो आई विश की आई शुड शेयर यू द फंडामेंटल्स ऑफ जीएसटी. In case you have any questions, we can take up the questions, few questions now, rather than I'm going to the another chapter, which otherwise you will not be able to comprehend कि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, overdose हो जाएगी. So over to you, Kunal and Surbhi. From my side, the basic concepts of GST, I try to explain you in around 45 minutes time, which was allotted to me. Thank you so much, Atul sir, for enlightening us about the fundamentals of GST and the way you explained the difference between the old regime and the new regime and how we charge GST on different products was amazing. Surbhi, hand over to you. Thanks, Kunal. Now, I would like to invite Manoj Kapoor, sir, the co-founder of Texo. Manoj, sir, please. Hello, friends. First of all, thank you to Atul Gupta ji, past president of ICAI and author and eminent speaker on GST, and to enlighten the students on the emerging field of the GST. And friends, as Atul ji mentioned that all of you know that GST is the emerging field. So I just want to tell you that we are also come up with a 2-month certificate course on the GST. And when you are going to join any course on the GST, then always comes 2 type of questions in your mind. Number 1, why is this course? And second, why from the which organizations? So for the questions, both the questions, I want to give the answer. The answer of question number 1 is, as Atulji already mentioned, that there is a 1.4 crore SSC already exists in the GST environment in India, and every month 2 to 3 lakhs new SSC are getting add up. So it means this field is the emerging field. And second thing, government focus is also be on the indirect tax collections, and that's the reason from the last 8 years from the Modi regimes, and the contribution of the indirect tax, especially due to the GST, is also gone up by the 5%. So these are the 2 answers why we have to join the course on the GST. And secondly, about the quality or the merits of the our course, one thing is that this is a UGC approved course, and the students get the certificate which be the embedded by the stamp of Government of India, University of Delhi, and IIA and the Taxo Academy. And the third thing is the faculty who is teaching the students is the well versed, has the experience in the industries. People have the faculty has the experience of more than 24 years. And the fourth thing is the advisory committee who help us to design the course is the also very known. They have the people like Professor I.M. Pandey sir, CA Girish Ahuja ji, and many other people. And the last point, the fees of the course is also very nominal, is the 1450 rupees, all inclusive. And in the end of the day, I want to say thank you to Professor Jayasankar ji, Professor Asarani ji, to give us the opportunity to give the insight to the students on the GST. Thank you very much from my side.